Technology. I am Ankita Diwan. Yesterday we had done question 1 of chapter quadrilateral exercise 1.1. So now we'll do question number 2, which is if all the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. If all the diagonals, so पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? पैरेललोग्राम क्या बनेगा? कोई 4 साइडेड फिगर, दिस, इसके कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? 2 ही डायगोनल्स बन सकते हैं, 1 and 2. So if all the diagonals means if these two diagonals are equal, if these diagonals are equal, then we have to show that it is a rectangle. If we take a parallelogram and diagonals of parallelogram, all the diagonals of parallelogram become equal to each other, then we have to prove that it becomes a rectangle. That parallelogram turns into a rectangle. So we'll do solution of this equation. So let's start. I'm going to rub it. Space चाहिए थोड़ी सी. चलिए, सी, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया. This is a parallelogram, and we'll draw 2 diagonals. So A, we'll name it as A, B, C and D. Okay, so this is a parallelogram A, B, C, D, and A, C and D we are called its diagonals. So first of all we'll write the statement which is given to us. We'll write the things which are given to us. Given क्या था? That A, B, C, D is a parallelogram. It is given to us in the statement. Okay. Now we'll write to prove the things which we have to prove. Okay. So we'll prove that ABCD is a rectangle. Okay, we'll prove that ABCD is a rectangle. We have taken it as a parallelogram and we'll prove that it is a rectangle. So we'll start with the proof. I had already told you that diagonal divides the 4-sided figure into 2 triangles. It is also divided into 2 triangles, and these 2 triangles are EC, A, B, C, and second triangle is D, B, C. So this parallelogram is divided into 2 rectangles, and we will take these 2 rectangles to prove that these 2 rectangles are, to prove that these 2 triangles are equal. This parallelogram is divided into 2 triangles. We'll take these 2 triangles and we'll prove that these 2 triangles are equal. Okay. So in triangle A, B, C and triangle D, C, B. Now look at these 3 things which I am going to write. This is a triangle. ABCD is a triangle. So line AB and CD. AB line comes under triangle ABC and DC line comes under triangle DCB. So this is a parallelogram, and I have told you that opposite sides of parallelogram are equal. So line AB and CD are equal. So we'll write AB is equals to CD.
give the reason that because opposite sides of parallelogram, this is called parallelogram. We can write parallelogram this side only. So because opposite sides of parallelogram are equal. So this was the first reason. ठीक है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये साइड दोनों इक्वल हो गई. नेक्स्ट लाइन इज डायगोनल DB and diagonal AC are equal. It is given in this statement itself. हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इफ ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब DB और AC आर इक्वल. DB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन था. सो विल गिव द रीजन दैट इट इज गिवन. नाउ ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई. अब ये बची ये लाइन और ये लाइन. AD is equals to BC, same. As I have told you that पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सेम रीजन. ठीक है, सो क्या बनता है, अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है तो हमें हर एक साइड को प्रूव करना था कि वो दूसरी ट्राइंगल के इक्वल है. तो 3 कंडीशन बननी थी, हमने 3 कंडीशन सॉल्व कर ली. एक साइड प्रूव करी दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के बराबर है. फिर दूसरी कंडीशन में प्रूव करा कि ये वाली साइड दूसरी ट्राइंगल की ये वाली साइड के बराबर है. तीसरी कंडीशन में प्रूव करा कि ये वाली साइड फर्स्ट ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के बराबर है. तो क्या बन जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आर इक्वल to each other, equal and congruent to each other. Therefore, triangle ABC is equal and congruent to triangle DCB. Reason क्या लिखेंगे? We'll write by side property. साइड प्रॉपर्टी ही क्यों लगाई हमने? बिकॉज हमने तीनों साइड्स ही प्रूव करी हैं. ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी. वी हैव प्रूव्ड ऑल द 3 साइड्स विच आर इक्वल टू ईच अदर. सो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? साइड की प्रॉपर्टी ही लगेगी. ओके, सो हमने क्या करा, हमने प्रूव रेक्टेंगल करना है ना. अब हमने पहले ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स ने एक पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया था और वो 2 ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है. अब हम प्रूफ करेंगे कि ये रेक्टेंगल है. अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सारा करा दिया है. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी ने वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उसको जाके देख लीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. अब हमने प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ कर देंगे कि इनके एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं. अगर 90 डिग्री बना जाएंगे तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा. आई होप इतना समझ आ गया होगा. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सम को आगे. चलिए, अभी हमने क्या प्रूफ करा था? ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB. अब हम प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल है, उसके लिए हम प्रूफ कर देंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो अब हम एक एंगल लेंगे इस ट्राइंगल में से. सिंस दीज 2 साइड्स आर इक्वल AB एंड DC, सो विल टेक angle ABC which is equals to angle DCB. ठीक है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो उनके एंगल भी इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब ये साइन गिवन हो एंगल का और 3
साइड्स गिवन हो तो हमेशा सेंटर वाली साइड एंगल बनती है। तो इस ट्रायंगल में बी वाली को हम एंगल कंसीडर करेंगे और इस साइड में सी को हम एंगल कंसीडर करेंगे। अब दीज टू लाइन्स आर इक्वल एंड बीसी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। सो और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों एक एंगल इस लाइन पे बन रहा है, एक एंगल इस लाइन पे बन रहा है और बीसी ट्रांसवर्स है। तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री बिकॉज AB is parallel to CD। ये रीजन आ गया। अब ABC को हमने किसके इक्वल लिया था DCB के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। अब ABC को हमने किसके इक्वल लिया था DCB के। अब DCB के इक्वल लिया था तो हम DCB की जगह पे ABC लिख सकते हैं क्योंकि हमने शो कर दिया है कि ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, चाहे आप ABC की जगह पे DCB लिख लो, चाहे आप DCB की जगह पे ACB लिख लो, कोई गलत नहीं कर सकता, दोनों कंडीशन सही है। तो हम करेंगे ABC की जगह पे लिख देते हैं DCB क्योंकि ये इक्वल है और ये तो एज इट इज लिख दिया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज बिकॉज ऑफ 1। ये हमने 1 कंसीडर करी थी ना, तो बिकॉज ऑफ 1 ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 DCB प्लस 1 DCB इज 2 टाइम्स एंगल DCB विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 180 डिग्री ओवर 2। सो एंगल DCB की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, मतलब एंगल C 90 डिग्री के इक्वल आ गया। और एंगल DCB किसके इक्वल था एंगल ABC के। सो एंगल ABC भी क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल ABC भी 90 डिग्री आ गया, एंगल DCB भी 90 डिग्री आ गया। और ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। सो हमने प्रूव कर दिया दैट ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूफ करना था। ABCD को हम पैरेललोग्राम लेके चले थे, हमने रेक्टेंगल प्रूफ करना था, हमने कर दिया। हमने क्या किया, डायगोनल्स ने 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया था पैरेललोग्राम को। सो वी हैव प्रूव दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये दोनों इक्वल आ गई है देन देयर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जब इन दोनों एंगल्स का सम किया तो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया, ये दोनों इक्वल थे तो हम ABC की जगह पे एंगल DCB पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास DCB क्या आ गया एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल DCB 90 डिग्री है तो एंगल DCB ABC के इक्वल था, एंगल ABC भी 90 डिग्री आ गया। ABCD को हम पैरेललोग्राम लेके चले थे, हमने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया और रेक्टेंगल में ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमने प्रूफ कर दिया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रिलेटरल का। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए ये सम हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कौन सी वीडियो का अपलोड होने वाली है। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे क्विज डालती रहती हूँ, आप सॉल्व करते रहिए सो दैट आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, माइंड और तेजी से काम करना शुरू करें। सो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स जो आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं सो दैट मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच।